Hello friends, now in this class we will start saving function. Before this class we have already discussed consumption function, propensity to consume, and types of propensity to consume. Now we will start saving function. What is saving function? Same as in the initial class we have discussed, consumption is a function of income. Now saving is also a function of income. Saving is represented by capital S, is a function of income. Okay, saving is a function of income. When there is a increase in income level in the economy, then automatically there will increase in savings. As we have earlier see in the diagram also, as there is increase in income, consumption is also going to increase, but not in the same proportion, because as a human being we have a mentality to save something. We will not use whole increased amount of income. Then same in case of as a whole in economy, when we see the saving as a whole, then this is a psychological phenomena that according Keynes also explained this, that when there is an increase in income, we will not always spend whole amount of increased income. We will start some saving. Okay, as there is increase in income, the level of saving will also increase. Then it means there is a positive relationship between saving and income. Second is, this shows saving function or propensity to save shows saving level at different level of income in an economy. Next we will discuss this relationship with the help of table and a diagram. Okay, Y and C, 0, 100, 200, 300 and 400. This is 1, 150, 200, 250 and 300. सेविंग्स क्या होगा? Y माइनस C. इनकम जो है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, कंजम्पशन में और सेविंग्स में. तो ये आपका एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा चाहिए तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे. माइनस 100, माइनस 50, 0, 50 and 100. This is saving. As the level of income is increasing, there is also increase in savings. Now we will draw diagram how we can construct or draw a diagram. Take axis, here income, here is a savings. Okay, just see one thing. At zero level of income there is a negative savings. It means we have nothing to save, but in that situation also we are consuming something. Okay, when you have zero income, then how you can consume? It means you are utilizing your past savings or you are borrowing. That's why savings is in negative. So because this is in negative, we will draw first initial point of saving on a y-axis on a negative side, this negative quadrant. This is the initial minus 100 savings. Second, when both consumption income equal and saving is 0, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ दिस इज अ पॉइंट वेयर बोथ आर इक्वल, ओके, तो इसके बिल्कुल नीचे सेविंग्स 0 होनी चाहिए. ये यहाँ पे ये 0 यहाँ पे आएगा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे. देन आफ्टर दैट देयर इज अ पॉजिटिव सेविंग. व्हेन यू विल ज्वाइन दिस कर्व यू विल गेट saving curve. Before this point, here savings are 0. Before this point there is a negative savings, here it is 0, and after that it becomes positive.
तो दिस इज अ सेविंग कर्व। ये स्टार्ट कहाँ से होएगी, ये वाई एक्सिस से होएगी, नेगेटिव साइड से स्टार्ट करनी है, देन 0, आफ्टर दैट पॉजिटिव। दिस इज अ सेविंग कर्व। ओके, तो हमें वाई एस कर्व का भी पता चल गया है, हमें सी कर्व का भी पता चल गया है, हमें एस कर्व का, सेविंग कर्व का भी पता चल गया है, और इससे पहले वाली क्लास में हमने एडी के बारे में भी किया था, वो भी हमें क्लियर हो गया है। अब मैं इसको रब नहीं करती क्योंकि हमें दोबारा यूज करना है, तो मैं सीधा प्रोपेंसिटी टू सेव जो है इसके टाइप्स पे चलते हैं। अगेन वी हैव टू टाइप्स, APS and MPS, average propensity to save and marginal propensity to save. तो APS is equal to S upon Y. This is S upon Y. MPS, marginal propensity to save, change in S, change in Y. Okay, this is a total saving, ratio of total saving to total income. This is a change in saving due to change in total income. That is a marginal propensity to save. Now we will discuss one by one. First we will start APS. APS जो है it cannot be equal to 1. कभी भी 1 इसका वैल्यू नहीं आएगा। 1 आने का मतलब क्या है कि दिस इज सेविंग एंड इनकम बोथ आर इक्वल एंड देन इट विल बिकम टू 1, बट इट कांट बी पॉसिबल, हो नहीं सकता कि जितनी इकोनॉमी की इनकम है उतनी ही सेविंग भी हो रही हो, क्योंकि हमें कंजम्पशन तो करना है, कुछ तो खर्चा करना है, देन इट कांट बी पॉसिबल कि APS जो है वो कभी 1 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि APS कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। सेकेंड इज APS 0 हो सकता है, होता भी है जब सेविंग्स 0 होती है। सेविंग कब 0 होती है, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, तो उस समय APS की वैल्यू जो है वो 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज APS नेगेटिव भी होता है। कब होता है, व्हेन सेविंग्स आर नेगेटिव। इनिशियली जब सेविंग्स नेगेटिव होती हैं तो उस समय APS कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करना है, APS S अपॉन Y, ये S हमारा कितना है -100, Y कितना है 0, ओके, ये ब्लैंक आ जाएगा। दूसरा -50 डिवाइडेड बाई 100, तो ये माइनस में जाएगा -0.5, ओके। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट निकालोगे 1 आ जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि APS जो है वो 0 भी हो रहा है, वो माइनस में भी जा रहा है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन वो 1 कभी नहीं होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी APS का वैल्यू बढ़ेगा। APC के केस में मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी APC की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होएगी। APS इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन इनकम, एंड APC जो है वो डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन इनकम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेविंग्स बढ़ेगी जैसे इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी, लेकिन कंजम्पशन जो है उसमें फॉल आ जाएगा, तो इकोनॉमी की इनकम बढ़ने के साथ बढ़ेगी वो भी, लेकिन जो APC का वैल्यू है वो फॉल करेगा, ओके। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS। APC और APS में हम रिलेशन करेंगे, मैं यहीं पे करने लगी हूँ इसको। दोनों का रिलेशन क्या होता है, APC प्लस APS, दोनों का सम 1 होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, C अपॉन वाई प्लस S अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम लिया, y कॉमन, C प्लस S इज इक्वल टू 1। तो C प्लस S क्या होता है, y क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, C प्लस S,
एक कंज्यूम करते हैं, दूसरा सेव करते हैं। तो यहाँ मैं y पुट कर सकती हूँ, y डिवाइडेड y इज इक्वल टू 1। तो दोनों को वो डिवाइड किया, इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS। अब हम MPS की तरफ चलते हैं। हाँ जी, MPS जो है, MPS का फॉर्मूला दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। दिस इज स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सेविंग कर्व का स्लोप है। इसको हम फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे पहले दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमी में जब इनकम चेंज हुई, उसके कारण इकोनॉमी में सेविंग्स में क्या चेंज आया, दिस रेशियो इज अ MPS। अब MPS के बारे में भी कुछ पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है वो हमें ध्यान रखने हैं। अगेन इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होएगी। देन जब MPS 1 होगा तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में चेंज इन कंजम्पशन 0 है। बट ये हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन में कोई चेंज ना आए। तो उसी सिचुएशन में MPS 1 हो सकता है। दूसरा, MPS 0 कब होगा, जब चेंज इन सेविंग्स 0 होंगे। सेविंग जो इनकम बढ़ने के साथ सेविंग्स में जो चेंज आया है वो 0 है। तो ये दो चीज़ें थी जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप करेंगे बिटवीन MPC प्लस MPS। दोनों में रिलेशनशिप जो है, दोनों का सम 1 होता है। अगेन वी कैन प्रूव इट। दिस इज अ चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y एंड दिस इज अ चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। अगेन एलसीएम लिया, इक्वल है, कॉमन है, चेंज इन C प्लस चेंज इन S इक्वल टू 1। अब हमारा Y क्या था, C प्लस S था। तो चेंज इन Y क्या होगा, चेंज इन C प्लस चेंज इन S। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं चेंज इन Y लिख सकती हूँ, इक्वल टू 1। तो ये दोनों कॉमन है, ये भी क्या हो गए, इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया, बोथ साइड्स आर इक्वेट हो रही है, इक्वल है। तो ये हमारी रिलेशनशिप प्रूव हो गई है कि दोनों का सम जो है वो क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो इस क्लास में मैंने आपको क्या बताया, प्रोपेंसिटी टू सेव, और उसके साथ हमने उसके टाइप्स किए हैं। टाइप्स के साथ हमने रिलेशनशिप किया है APC और APS में, और MPC और MPS में। तो इससे हमें पता चल गया कि इनका जो सम है वो इक्वल टू 1 होता है। और दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हमें जब आगे न्यूमेरिकल्स करनी है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसका फर्दर नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।